dear students, I am here with another video, that is polygenic inheritance of class 12 biology. Okay, let us start. Polygenic inheritance means, it is a quantitative inheritance. Quantitative inheritance is called polygenic inheritance. So what do you mean by quantitative? It means it is a magnitude. Are you getting my point? That you can calculate or that you can count. Okay. But in biology, what does it mean? In biology, quantitative inheritance means it refers to the numbers of the gene, especially numbers of the gene. They will control the traits, they will show or express the traits or the characteristics. Are you getting my point? The numbers of gene, especially they express the character, so that it is called polygenic inheritance. Let us take an example of that. Skin color in human being. Skin color in human being is a type of polygenic inheritance. Okay, there are the especially three types of genes controlling the body color of the human being, that is gene A, gene B and gene C. If they will in dominant form, then they will show different character. If they will in recessive, then they will show in different character. Is that clear to all? Skin color of human being is being controlled by three types of gene, that is gene A, gene B and gene C. If these three genes are present in the dominant form, they will express some character. If these three genes are in recessive, then they will express some other different characters, right? Excuse me, let us explore more and more. Suppose I am telling you all are the homozygous, that means AA, BB and CC, all are the dominant form, right? All 6, 2 to 4 and 6 are dominant. Then what will happen? The maximum melanin production will take place. Maximum melanin will produce. Melanin is a pigment. If melanin pigment will be there, then the color of the body will be obviously black. Suppose I will tell you that A is dominant, another A is recessive. Similarly, capital B and small b. Another type of gene is also one dominant, one recessive. That means out of 6, 3 are dominant. Then the melanin production will be intermediate. That means medium quantity of melanin will produce. Similarly, if I will tell you that all the genes that present are not dominant, that means zero dominant. No one is dominant over here. All are the recessive. Zero dominancy. Then there is minimum production of the melanin, or you can say no melanin. So the color of the organism or the skin color will be albino. Albino means white. So let us see more and more about the number of dominancy. Okay, suppose I will tell you the number of gene is 6 are dominant. Here you see number of dominant gene of offspring. अगर offspring के पास 6 जीन जो है, ये जो 6 जीन मैंने बोला, 6 पूरा डोमिनेंट है, ऑल आर डोमिनेंट, देन मेलानिन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, स्किन का कलर डार्क होगा. अगर ऑफस्प्रिंग के पास जो 6 ठो जीन है मैंने बताया, 6 से अगर कोई भी 5 अगर डोमिनेंट है और एक रिसेसिव होता है, तो जाके वो इंटरमीडिएट होता है, उसका बॉडी का कलर वेरी डार्क होता है. समझ में आ रहा है? अगर ऑफस्प्रिंग के पास जो 6 जीन से 6 जीन से 4 जीन अगर डोमिनेंट में है, तो उसका बॉडी का कलर डार्क होता है. अगर ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग के पास 3 डोमिनेंट है आउट ऑफ 6, ये सारे के सारे आउट ऑफ 6 है, ठीक है, आउट ऑफ 6, ये भी आउट ऑफ 6, ये भी आउट ऑफ 6. आउट ऑफ 6 से अगर 3 जीन जो है डोमिनेट होता है, कोई भी तीनों जीन, तो हम उसको क्या मानते हैं? उसका बॉडी का कलर जो होता है इंटरमीडिएट कलर होता है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होता, ज़्यादा फेयर नहीं होता है, ठीक है. अगर एक ऑफस्प्रिंग के पास 6 जीन से 2 जीन जो है तुम्हारा डोमिनेट होता है, तो मेलानिन प्रोडक्शन बहुत कम होगा, उसका बॉडी का जो कलर है वो फेयर होगा. अगर एक ऑफस्प्रिंग के पास 6 जीन से 1 जीन डोमिनेट होता है, तो मेलानिन बहुत ही लेस होगा, उसका बॉडी का कलर वेरी फेयर होगा. सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग के पास 6 जीन से कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, 0 डोमिनेंट है, दैट मीन्स वो बॉडी का कलर व्हाइट होगा, जिसको हम बायोलॉजी में कहते हैं अल्बिनो. ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को याद रखना है. 6 अगर होगा तो ब्लैक, 6 डोमिनेंट जीन होगा तो ब्लैक, 5 डोमिनेंट होगा तो वेरी डार्क,
4 होगा तो ओनली डार्क, 3 डोमिनेंट होगा तो इंटरमीडिएट, 2 डोमिनेंट होगा तो फेयर, 1 डोमिनेंट होगा तो वेरी फेयर, कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, सारे के सारे रिसेसिव रहेंगे तो वो है अल्बिनो। ठीक है, चलो अभी इनहेरिटेंस करते हैं मेंडेलियन लॉ के हिसाब से। दिस इज ए होमोजाइगस ब्लैक, यू कैन से दिस इज black in nature, and this is albino means white, right, or fair in color. Homozygous black and homozygous albino, then they will undergo, this is the male gamete, right, this is male gamete, and this one is your female gamete, female parent, both the parent, okay. Due to meiosis they will undergo the reductional division and produce how many number of gametes? 8 gametes, 8 male gametes and 8 female gametes. All gametes will be like this only, ABC 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 capital ABC capital ABC, that means 8 times. Similarly 8 times small abc will be produced, and I have already taught you, मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि कैसे गैमेट निकालना है, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? 135, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज सिमिलर विद द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, सो 135 136, ठीक है, फिर 145 146, सिमिलरली 235 246, ठीक है, सिमिलरली 235 236 245 246. In this way you will get all 8 male gamete and 8 female gamete, यानी यहाँ पे 8 male gamete, यहाँ पे 8 female gamete, total 16 gametes you will get. After that you write the male gamete over here and the female gamete over here and draw the Punnett square. You will get 64 boxes, okay. All the 64 boxes have the same characteristics, or that means all offsprings are same, having the genetic constituent capital A small a capital B small b, जो कि हमने क्या बताए हैं, हेट्रोजाइगस और कैपिटल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, यू विल गेट ऑल लाइक दिस वे ओनली, राइट। यहाँ पे जो 8 मेल गैमेट प्रोडक्शन होगा उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे 8 गैमेट प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर भी 8 गैमेट प्रोडक्शन होगा। ये जो मेल गैमेट 8 प्रोडक्शन होगा ये सारे के सारे सेम रहेंगे, ABC रहेंगे, यहाँ पर भी ABC। आप लोग करके देखो ना, फॉर्मूला को इस्तेमाल करके गैमेट निकालो, सारे के सारे 8 यहाँ पे लिख दोगे, ये भी ABC 8 टाइम यहाँ नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये F1 जनरेशन में सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बच्चे, 64 जो मतलब बच्चे आएंगे ऑफस्प्रिंग्स, उन लोग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट वही होगा, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, दैट मीन्स ये हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे कितना डोमिनेंट है? 1 2 3 डोमिनेंट है कि नहीं? 3 डोमिनेंट मतलब कौन सा कलर होने वाला है? बॉडी का कलर इंटरमीडिएट होने वाला है। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन को जब हम सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? सेल्फिंग मतलब देखो यहाँ पे वही जो है कैपिटल A स्मॉल कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c को जब हम F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आए थे 64, उसको जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तब क्या क्या गैमेट प्रोडक्शन होने वाला है। देखो सेम फार्मूला मैंने बता दिया आप लोग को। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट निकलने का फार्मूला 135 136 145 146। 135 मतलब ये है 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। सिमिलरली 136 है, 1 मीन्स कैपिटल A, 3 मीन्स कैपिटल B, 6 मीन्स स्मॉल c। देखो यहाँ पर लिख दिया कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c। उसी हिसाब से तुम लोग को मेल गैमेट यहाँ पे 8 मिलने वाला है। कितना मेल गैमेट मिलेगा? यहाँ पे 8 मेल गैमेट यू विल गेट ओवर हियर आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला। सिमिलरली दिस इज द फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट में भी वही गैमेट प्रोडक्शन होगा, उसी फार्मूला को इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर भी 8 फीमेल गैमेट मिलेगा। इसको समझ रहे हो? फिर करना क्या है, यहाँ पे जो 8 मेल गैमेट मिला है ना, ये 8 मेल गैमेट को एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो 8 मेल गैमेट है उसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लिखना है और यहाँ पे जो 8 फीमेल गैमेट डाउन में लिखना है। कैसे निकलना है ये फार्मूला को इस्तेमाल करोगे, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ,
और पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी भी दे दिया हूँ, उसको देखो आराम से। ठीक, जब मेल गेमेट ऊपर में लिखोगे, फीमेल गेमेट को डाउन के लिख के फिर क्रॉस करवाना है। देखो कैसे क्रॉस करवाना है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। सिमिलरली ये जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे स्मॉल सी। उसी प्रकार 64 बॉक्सेस को ऐसे भरना है। ठीक है, 64 बॉक्स को जब भर दोगे तो ऐसे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है ना, हमको काउंट करना है। क्या काउंट करना है ना, कितना डोमिनेंट है। फर्स्ट बॉक्स में कितना डोमिनेंट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो जीन है सारे के सारे डोमिनेंट है। नेक्स्ट में कितना है, 1 2 3 4 5, और एक देखो रिसेसिव है ये, तो हमको डोमिनेंट ही लेना है, तो 5 डोमिनेंट है। यहाँ पर कितना डोमिनेंट है, 1 2 3 डोमिनेंट है, 4 डोमिनेंट 5 डोमिनेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। यहाँ पे 1 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट 3 4 डोमिनेंट। उसी प्रकार उसको भर दोगे। ठीक है, मतलब गेमेट को भी लिखना है, सॉरी ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन